Hello everyone, this is Dr. Neri here and you guys are back with the CVS module guidelines, and I hope that this guidelines will mean a lot to you, will help you a lot, and trust me, the sources I'm going to tell you in this guideline. First of all, before going into the sources, don't forget to subscribe to my channel so that you get all the notifications of my brand new things. And second, the most important announcement I want to give you that there's an Instagram link in my description. You can go. The post of giveaway is right now going on live for like 7 days till next Monday 24th of May. It will be going on, and I hope and I want all of those who are watching my video, please participate in the giveaway. You never know who will win the nerdy ambassador position, and they will be given online certificates and digital certificates, and there's a bunch of information on my Instagram feed. You can go and have a watch and participate as soon as possible before it closes. So let's just move into it. Don't forget to subscribe and press the bell icon. CVS module, it's for the third yearites, it's not for the second yearites. फर्स्ट ईयर में CVS होता है आपके MBBS में, it's not for that. उसमें थोड़ा सा एनाटमी पे ज़्यादा फोकस होता है, फिजियो पर ज़्यादा फोकस होता है. This is that will I will also make. अभी तक आया नहीं है आपका, that is why I haven't made it. I am on my way, but अभी because of like 8 people told me, so I thought I need to make it. Secondly, CVS module ki, this is for third year, right? First thing, so now basically we are gonna focus on more patho and medicine and pharma, considering the fact that you have the most important concepts of anatomy and physio on your mind, in your mind. ठीक है. अगर आपने किसी भी मॉड्यूल पे थर्ड ईयर आने के बाद आपने कोई भी अपना anatomy को रिवाइज करना है, physio को रिवाइज करना है, there's a little bit tip for you guys. Do not go for the long sources at that moment because मॉड्यूल सर पर होता है और कुछ हो भी नहीं पाएगा. तो if you guys, there are literally the videos, third year books videos, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है, go watch it. Secondly, use BRS की anatomy की book, which is extremely good, and for physio have a little bit, you know, Kaplan का review. Kaplan is again long थोड़ी सी, तो अगर देखी हुई है तो good है, वरना तो you know go for Firdaus भी अच्छी है, but that is not as much good. Let's just move into the CVS module की आगे की. So the basic major things which are gonna have here will be our patho, right? So CVS module 1 was one of my favorite module. I did my internship at NICVD. I got one book over there and it helped me a lot. Some people will not have that book of course, but we'll tell you the alternatives, right? पैथोलॉजी में जो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है, उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं. पैथो में बहुत इंपॉर्टेंट है पैथो, ठीक है. अगर आपने 4 GPA लानी है, ठीक है, मैं तो कॉन्फिडेंटली ये इसलिए बताती हूँ मॉड्यूल गाइडलाइंस क्योंकि मेरी खुद की इतनी GPA आती है माशाल्लाह से. अगर फॉर एग्जाम्पल जब कभी नहीं आती किसी मॉड्यूल गाइडलाइंस के लिए, तो ऑलवेज आस्क फॉर द गाइडलाइंस फ्रॉम माई बैचमेट जिनकी 4 GPA होती है, सो दैट यू गाइस कैन नो द सोर्सेज परफेक्टली, ठीक है. आई डोंट वांट माई GPA टू अफेक्ट योर GPA. सो पैथोलॉजी में आपने 2 चैप्टर्स को सबसे बेसिस पे ध्यान देना है. सबसे पहला इज़ योर वेसल्स का चैप्टर एंड द सेकेंड इज़ योर हार्ट का चैप्टर. Okay, so now we're going to have a heart-to-heart contact here, heart-to-heart talk here. I'm going to tell you कि कौन से topics बहुत important है. पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे module guidance में. Just grab a pencil and write down the topics I'm going to tell you. Very very important topics हैं, ठीक है. कहाँ से करना है मैं इनका sources बताती हूँ. पहले जो मैंने sources लिखे हैं ना, पहला जो सोर्सेज मैं हमेशा पैथो के लिए ओवरऑल बता रही हूँ. मैंने कौन से सोर्सेज यूज़ किए, मैंने गाइस डॉक्टर नजीब यूज़ किया. आई नो इट सक्स बट इट इज़ गुड. सेलेक्टिव टॉपिक्स के लिए जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम गोना टेल यू कौन से करने हैं कौन से नहीं करने. मैंने इसमें BNB भी देखा, मैंने इसमें पैथोमा भी करा, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है बेसिस की. यू गाइस के नेवर, बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट जस्ट मूव टूवर्ड्स पैथोलॉजी. आई हैव दिस माई, ये मेरी, ठीक है. अब राइटिंग पे मत जाइएगा. दिस इज़ माई CVS मॉडल की बुक, और ये मैंने जो जहाँ से किए हुए ना, आई एम गोना टेल यू डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट सोर्सेज से करने हैं, ठीक है. द पॉइंट ऑफ शोइंग माई गंदी सी राइटिंग हियर इज़ दैट एक जगह से ना चीज़ें नहीं होती आपकी सारी, ठीक है. एक जगह से सारे टॉपिक्स कवर नहीं होंगे. लाइक पैथोमा से सब कुछ कवर हो जाएगा, बट एक जगह से सारी चीज़ें नहीं होती इस मॉड्यूल में. आपको डॉक्टर नजीब में हर चीज़ नहीं देखनी है. कोई वीडियो बहुत अच्छी है उनकी, तो आई एम गोना टेल यू. दैट इज़ व्हाई आई टोल्ड यू कि ग्रैब अ पेंसिल एंड राइट डाउन कि कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक, कौन सी वीडियो से करना है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो पहला चैप्टर बेसिस में आता है, दैट इज़ वेसल्स का चैप्टर. उसमें से 3 टॉपिक्स अपने सबसे पहले करने हैं, विच आर योर वेसल्स के चैप्टर में से
सबसे इंपॉर्टेंट जो वेसल्स के चैप्टर में से है ना, वो है हाइपरटेंशन, वेस्कुलाइटिस एंड आर्थरियोस्क्लेरोसिस। आर्थीरियो बोलो, एथीरियो बोलो, ये इतने कोई तीनों इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, आई कैन नॉट एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट। ये तीनों तकरीबन 40% ऑफ द पेपर बनाते हैं और ये बेसिस से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है करना। बट बेसिस से पहले क्या करना है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एट द एंड एनुअल के टाइम पे मुझे टाइम रिवाइज करने का बेसिस से नहीं मिला था, बट मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। द रीजन वॉज द सोर्सेज आई डिड। सो लेट्स जस्ट हैव अ टॉक अबाउट द सोर्सेज, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग CVS मॉड्यूल का वी आर गोना डू इज, जो हमारे पास एथरियोस्क्लेरोसिस की है वीडियो, वो हमने डॉक्टर नजीब की देखी थी मैंने, ठीक है। उसमें एथरियोस्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस, मॉकिनबर्ग, ये डॉक्टर नजीब ने बहुत अच्छे से समझाया था। तो पैथोमा आपने देखनी है, मैं आपको बता रही हूँ कॉन्सेप्ट कैसे और अच्छा करना है। तो डॉक्टर नजीब से मैंने ये वीडियोस देखी थी, ठीक है, बहुत अच्छा उन्होंने समझाया था। पैथोजेनेसिस ऑफ एथरियोस्क्लेरोसिस डॉक्टर नजीब ने बहुत अच्छा, अगेन बता रही हूँ, समझाया हुआ है, एवरी सिंगल कॉज। फिर मैंने उसी चीज़ की पैथोमा देखी, ठीक है, समझ आ रही है बात। फिर मैंने आर्थरियोस्क्लेरोसिस की पहले डॉक्टर नजीब देखी। आई नो इट्स लॉन्ग टर्म बट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी तक मुझे याद है चीज़ें। फिर मैंने पैथोमा की एथरियोस्क्लेरोसिस की वीडियो देखी और उसके बाद मैं डायरेक्ट आई जम्प्ड इनटू माय बेसिस की एथरियोस्क्लेरोसिस की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लाइन्स तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ कौन सी। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड वेसल्स का चैप्टर है एंड यहाँ से एथरियोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से गंदगी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जो एथरियोस्क्लेरोसिस के एक एक डायग्राम है, ये भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट लिखनी है। जो सबसे मेन चीज़ है एथरियोस्क्लेरोसिस की, वो है आपके पास दिस थिंग, वेयर इट वेंट, दिस थिंग। ये एक एक चीज़ आती है, रप्चर, अल्सरेशन, इनके ऑप्शंस आते हैं, MCQs आते हैं, ये एक एक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ अगर आपने देख ली, ये बहुत आता है, फैटी चेंज ये बहुत आता है, प्लीज़ 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 फोकस से पढ़ लीजिएगा। एथरियोस्क्लेरोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी मैंने डॉक्टर नजीब पर ध्यान दिया था। उसके बाद मैंने वेस्कुलाइटिस पर डॉक्टर नजीब को देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट पैथोमा कीजिएगा वेस्कुलाइटिस के लिए। वेस्कुलाइटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इट इज़ वेरी ट्रिकी। इसके लिए आपने अपना इस बेसिस से करनी है वेस्कुलाइटिस। ऑल दोज अटेम्प्टिंग फॉर USMLE आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ डू इट फ्रॉम USMLE दिस टाइम, बिकॉज GPA अच्छी आ जाएगी तो क्यों हाथ से जाने दे रहे हो, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्कुलाइटिस के लिए मैंने एक और बुक से करा था, विच वॉज दिस माई फेवरेट बुक, आई नो दिस इज़ द बुक, राइट। सो बेसिकली मैंने इसमें से भी बहुत अच्छा सा वेस्कुलाइटिस किया था एंड इट हेल्प मी अलॉट। वेस्कुलाइटिस को छोड़ के नहीं जाना, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। फिर आ जाता है आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट कार्डियक एनॉमलिटीज़, कंजनाइटल, ठीक है। कंजनाइटल एनॉमलीज़ के लिए जो है ना, आपने क्या करना है, पैथोमा की ये सारी वीडियोस है, ठीक है। तो मैंने पैथोमा की वीडियोस पे करी। जब मैंने पैथोमा की वीडियो में कंजनाइटल एनॉमलीज पढ़ा तो आई रियलाइज दैट यू नो व्हाट, मुझे समझ नहीं आया। एम्ब्रायो था उसमें, तो आई लिटरली वेंट एंड आई स्टडीड माई KLM एम्ब्रायो दिस टाइम। आई नेवर सजेस्ट स्टडिंग एम्ब्रायो इन 3rd या 4th या 5th ईयर, बट द क्वेश्चंस डू कम एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइस के कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ पढ़ें, कंजनाइटल डिफेक्ट्स पढ़ें। एंड कंजनाइटल डिफेक्ट्स तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक मुझे एम्ब्रायोलॉजी समझ में नहीं आती, बिकॉज यू हैव दिस whole thing, right, patent ductus arteriosus, it is very interesting honestly speaking. तो for that I would suggest कि मैं different topics के साथ आपको बता रही हूँ, but I would suggest कि this time you have to do embryology एंड एम्ब्रायोलॉजी जल्दी से अपना जो है KLM पर कर लीजिएगा। एक YouTube की वीडियो एम्ब्रायोलॉजी में, आई डोंट नो द एक इंडियन वुमेन है, शी यूज्ड टू एक्सप्लेन इट एंड शी जस्ट डू दिस अमेजिंग जॉब एक्सप्लेनिंग थिंग्स सो राइट। तो उनका एक चैनल है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये सारे आपने पहले पैथोमा से करने हैं, उसके बाद जो है आपने करनी है अपनी बेसिस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का टॉपिक है वो मैंने थोड़ा सा डॉक्टर नजीब को ध्यान दिया था। द रीज़न वॉज दैट डॉक्टर नजीब ने ना बहुत इनिशियल से अच्छा समझाया कि एक डेफिनेशन समझाई कार्डियक वर्कलोड की, कार्डियक आउटपुट इनटू TPR, द फॉर्मूला समझाए एंड ही लिटरली डिड दिस वेरी नाइस जॉब एंड मेरा जो है वो बहुत अच्छा बन गया था। आई वुड सजेस्ट कि डॉक्टर नजीब पर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की भी एक वीडियो देख लीजिएगा। फिर थर्ड वीडियो जो टॉपिक है वो वेल्वुलर डिसीज़ है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई कैन नॉट एम्फेसाइज। ये जो मैं सारे टॉपिक्स बता रही हूँ, सबसे मेन मैंने आपने करके कवर करके फिर आगे बढ़ना है अपनी, ठीक है। तो पैथोमा मैं हमेशा मेन टॉपिक्स पहले कर लेती हूँ ताकि पेपर मेरा पास पूरा आ जाए, फिर उसके बाद मैं करती हूँ बाकी चीज़ें, फिर सारी आपने पढ़नी है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट और घटिया बात है इस मॉड्यूल की, जो मेरे एंड टाइम तक मुझे रोने पर मजबूर कर रही थी, वो ये थी कि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, चाहे वो कोई वेल्वुलर डिजीज़ हो, चाहे वो आपकी एम्ब्रायोलॉजी की पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस वाली चीज़ें हों, जब भी कभी आपके पास आएगा, ठीक है, मरमर का कोई भी चीज़ कि इसमें कौन सी मरमर है,
ठीक है, तो आपने वो अलग किस्म की पेन से लिखना है, मैं आपको बताऊंगी बाद में इसका। इतना अलग किस्म की पेन से लिखना है कि वो पेन आपने कभी यूज़ नहीं की हो, बहुत बोल्ड पेन हो, ठीक है। और आपने मरमर्स पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, याद रखना है कि कौन सी मरमर कौन सी उस पर आती है, बिकॉज इट कम्स अलॉट। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है ECG। दिस इज़ द मोस्ट हॉन्टिंग टॉपिक ऑफ ऑल। पहले ECG का बता देती हूँ मैं, ठीक है। अब ECG लोगों ने कहाँ से किया था, एट द एंड मैंने ECG रखा था, क्योंकि ECG जितना करोगे कम है, ठीक है, जितना भी करोगे। एंड फ्रॉम द फर्स्ट ईयर मेरे पास, मैं बहुत ट्रॉमेटाइज थी इस एक्सपीरियंस से कि ECG मेरे पेपर में आ गई थी और मुझे लिटरली नहीं आता था ECG करना। तो अब मुझे एक बेस्ट सोर्स चाहिए था, और अगेन जैसे ऑर्थो के लिए बेस्ट सोर्स नहीं है, वैसे किसी इसके लिए भी कोई बेस्ट सोर्स ECG के लिए नहीं है। बट मैंने कहाँ से किया था, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने वहाँ से किया था, एंड दैट इज़ योर, लेट मी टेल यू। मैंने देखी थी ECGs की बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स की वीडियो, ठीक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स की वीडियोस, कुछ जो मरमर की एक वीडियो है कि कौन सी मरमर कब प्रोड्यूस होती है, ओ माय गॉड दैट इज़ सो एक्सेलेंट वीडियो, ठीक है। पेपर में इतनी हेल्प हुई थी मुझे। एरिथमियास की वीडियोस, ये बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स में ECG की सारी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखनी है। फिर उसके बाद आपने ECG करना है डायरेक्ट फ्रॉम योर मेडिसिन। आई नो दिस बुक की हालत ख़राब है, बट इसमें जो ECG की हालत है, मतलब ECG की जो मेरी है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक चीज़ रेक्टिफाई आती है, बिफिड, P वेव, मिट्राल, हर चीज़ आती है, एवरीथिंग रट्टा मारनी है, एक एक चीज़। आई वुड नॉट सजेस्ट यू गाइज गोइंग फॉर डेविडसन दिस टाइम। मेडिसिन के लिए आंखें बंद करके आपने करनी है इस टाइम पर इरफान मसूद, रट्टा मारना है, एक एक चीज़ को समझना भी है अगर समझना चाहो तो। ECG के लिए मेरे फ्रेंड्स ने कुछ और सोर्सेज यूज़ किए थे, आई थॉट ऑफ टेलिंग यू, क्योंकि हर कोई मेरे जैसा नहीं होता, तो एवरीबडी हैव, बट मैं बता दूँ कि कहाँ कहाँ मिलेगी ECG। मैंने नहीं की थी आगे, बट लोगों ने कहाँ से की थी, मैंने इरफान मसूद से और बोर्ड्स एंड बियॉन्ड से की थी। मेरे फ्रेंड्स ने कहाँ से की थी, सम पीपल हैव गाइडन, उससे बेसिस कुछ कर ली थी, किसी ने डॉक्टर नजीब से करी थी, ही सक्स एट दिस, डोंट डू दैट। और थर्ड मेरे कुछ फ्रेंड्स ने करी थी कैप्लन से, दैट्स इट, ठीक है। ये सारे सोर्सेज हैं। मेडिसिन हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विच इज़ योर, हाँ, लोगों ने ना बेड साइड भी देखी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेड साइड बहुत अच्छी है। बेड साइड पे एंड टाइम पे जब आप कर लोगे ना, सारी बेड साइड से MCQs आते हैं, बेड साइड आपके पास होगी वार्ड की बुक, उसको आप यू जस्ट ओपन इट एट दी एंड टाइम, जब आपने ECG कर ली है पूरी, आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, उस पर जाकर देख लीजिएगा, उसको थोड़ा सा रट्टा मारिएगा और थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इट इज़ अ वेरी नाइस बुक। तो उसमें कार्डियो की पूरा टेबल बना हुआ है एंड मरमर्स का, इट्स वेरी नाइस, वो कर लेना। वो मैंने एंड टाइम के लिए रखा था बट मुझे टाइम नहीं मिला था। फिर आपने बेसिकली पढ़ना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आगे फार्मा। फार्मा, दिस इज़ अ टाइम, मैं इतना कैप्लन को पूछती हूँ, मैं इतना कैप्लन को अपना फार्मा का गॉड मानती हूँ, बिकॉज कैप्लन डिजर्व्स दैट प्लेस। बट मैंने कैप्लन को जब डिस्कवर किया था ना, वो दिस वॉज माई स्टेज। फार्मा में एंटी रिदमिक्स इतनी कोई मुश्किल हैं कि लिपिन से समझ नहीं आएंगी, ट्राई भी मत करना, टैडजन से समझ नहीं आएंगी, जस्ट स्ट्रेट अवे गो टू कैप्लन। नहीं है तो डाका डालो, चोरी करो, बट कैप्लन करो। कैप्लन की बुक लो और कैप्लन की वीडियोस देखो। मेरा पूरे स्टेशन, देयर वाज अ होल स्टेशन ऑफ वाइवा इन एंटी एरिथमिक्स पे, एंड मैंने बहुत अच्छे से करा था। इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग कि टीचर से ज़्यादा मुझे अच्छा आ रहा था, बिकॉज कैप्लन पर्सन डिड हिज वेरी नाइस जॉब। कैप्लन से एंटी एरिथमिक्स करना, एंटी एंजाइना वगैरह की, एंटी हार्ट फेलियर की ड्रग्स, और ये सारी ड्रग्स आपके पास होनी चाहिए, कर लेना। फिर आपके पास एंड में आ जाती है बात पीड्स की। पीड्स को मत छोड़ना। पीड्स की 2-3 ही स्लाइड्स हैं। रोमैटिक फीवर की स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो कर लेना, और रोमैटिक फीवर की कुंडी से भी देख लेना, द वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्गर, तो कुंडी से भी देख लेना। आखिरी जो सजेशन है वो ये है, सर्जरी प्लीज़ कर लीजिएगा। 3-4 टॉपिक्स हैं कैबेज वगैरह के, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आता है, इतना कुछ नहीं है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वुड सजेस्ट इरफान मसूद, गो फॉर दैट बुक। आखिरी एक सजेशन दूंगी इस पूरे इसके लिए कि एट द एंड ऑफ द डे रिवाइज 3 टॉपिक्स मेनली। वेस्क्यूलाइटिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ECG की इरफान मसूद की रिटायर्ड चीज़ें, एंड द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ मरमर्स। कौन सी डिजीज़ में कौन सा मरमर आ रहा है, ये अगर आपको आ गया, बेड साइड का आपने रट्टा मार लिया और आपने पास पेपर्स कर लिए, और एट द एंड कैप्लन के बाद फार्मा में क्या करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिपिन भी कर लीजिएगा, रटिएटेल। और मैंने पता है लिपिन नहीं की थी,
बट मैंने की थी अपनी फर्स्ट एड, और फर्स्ट एड से लिटरली मेरी जो किताब वो जो लाइन्स है ना वो रटी रटाइल आई थी. तो फार्मा आई वुड सजेस्ट कि आप कैपलन फर्स्ट एड और लिपिन से कर लें. एंड आई थिंक आई डिड अ प्रिटी वेल जॉब. थैंक यू सो मच. इफ यू वांट द गाइडलाइंस, प्लीज डू मेंशन द कमेंट section how do you like it and how much it helped you. Thank you so much.